Good evening, student. Welcome to my channel, Medical Lectures with Khushbu Ma'am. Today, I am going to discuss very important topic of your practical examination. That is instrument used in obstetric and gynecology. Okay, because this is very important topic and which you cannot ignore if you are a medical student or a nursing student. At the time of examination or your practical examination, when the examiner are presenting some instrument in front of you and asking you the question, you are with the blank faces, right? So as there is a lack of practical session in some of the colleges, you are not able to access these instruments. So this video will be very helpful to you at the time of your practical examination to secure more marks also. And student, this is the first part of this topic. Second part will be uploaded soon. So let's start the topic. First, this instrument is Cusco speculum. Can you able to see? This is Cusco speculum, or it is also known as self-retained vaginal speculum. ठीक है, इस बिकॉज इसका जो वाइटन पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, वो एक डक फेस की तरीके है, डक के माउथ के तरीके है. सो इसलिए हम इसको कहते हैं डक स्पेक्यूलम ऑल्सो. ओके, और इसके जस्ट पीछे जो स्क्रू है, दैट वी आर यूजिंग टू वाइडन द माउथ ऑफ स्पेक्यूलम. So where we can use this speculum is, this is like routine examination में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. OPD में जो एग्जामिनेशन होते हैं कॉमन, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसको. एंड फॉर टेकिंग द स्मीयर ऑल्सो वी आर इंसर्टिंग इनसाइड द वेजाइना अकॉर्डिंग टू द वल्वल स्पेस, एंड देन वी आर टेकिंग द स्मीयर फ्रॉम द सर्विक्स. ओके, सर्विक्स से हम स्मीयर ले सकते हैं. कॉपर टी रिमूव करना है, प्लेस करना है, ये सब के लिए हम कस्को स्पेक्यूलम या डक्स स्पेक्यूलम यूज़ करते हैं. ओके, सो आपने ये बहुत इंस्ट्रूमेंट देखा होगा अपने कॉलेज में, एंड यू डोंट नो लाइक व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस स्पेक्यूलम और इंस्ट्रूमेंट. then it is commonly used for routine examination in common procedures. Okay, next we are moving towards this fetal stethoscope. तो आपने बहुत ज़्यादा ये स्टेथोस्कोप देखा है, मैक्सिमम इट वाज देयर इन दी मेडिकल कॉलेजेस एंड नर्सिंग कॉलेजेस. Penard fetal stethoscope or fetoscope is basically used to assess the fetal sound or to hear the fetal sound. And how you can use this? This broad part is placed over the mother's womb, and this part you can use to hear the sound. यहाँ पे आप अपना कान लगाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया? So this part we will keep on the abdomen, and हम अपना यहाँ पे कान लगाएंगे, ठीक है. So that is how we are using this to assess the fetal heart rate, which is basically can be heard at 20th week of gestation. Okay. So student, this is called LS forceps. अगर आप इसको देखेंगे, so it is having a grip on the thumb area. Here you can see this is the grip they were having. Along with that, they have a zigzag pattern of tooth. Here you can see the zigzag pattern of tooth, right? Have you seen that zigzag pattern of tooth they were having? Okay. So this is basically you have to understand that this is LS forceps. और ये जो LS forceps है, आपको कभी कभी ना वर्सुलम में और अदर forceps में थोड़ा सा लगेगा कि ये सिमिलर है, बट इट इज़ नॉट सिमिलर. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर आप करेंगे तो हियर यू कैन सी लाइक यहाँ पे ए का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज़ LS forceps. ओके, इट इज़ हैविंग अ ग्रिप ऑल्सो. हियर यू कैन सी दिस इज़ ग्रिप. ईज़िली दे कैन लाइक अटैचमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकता है. सो बहुत अच्छे से हम ग्रास्प कर सकते हैं किसी चीज़ को. सो दिस इज़ LS forceps. यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा है. ओके,
और जब भी आपको एग्जामिनर पूछता है तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ग्रिप ही है और यहाँ पे थोड़ा सा ए का डायरेक्शन कर्व ए दे रहा है. So what is the use of this Ellis forceps is we can use this for grasping certain tissues and fascias. Okay, हमें लिफ्ट करना है ऑपरेशन के टाइम पर, किसी चीज़ को ग्रास्प करना है, पकड़ना है, रिट्रैक्ट करना है, कोई स्लिपरी टिश्यू है उसको पकड़ना है. सो वी कैन यूज़ दिस Ellis forceps. Sometimes they are asking regarding the parts of forceps, right? तो कुछ पार्ट्स जो हैं इसके सारे forceps में आपको एक ही जैसे मिलेंगे. ओके, जैसे कि बॉक्स लॉक, शैंक, रैक्चेट, finger ring and tip. So this is the common part I am showing you for all the forceps. If you are learning this, it will be helpful for else other forceps also. Okay, so basically this Ellis forceps, I hope you have understood. This is Ellis forceps. Okay, it is having a zigzag lock system. You can easily grasp, retract, lift, retract the slippery tissues. Okay, next is, so this is uterine sound, and basically I think everyone has seen this in their colleges. और ये जो है यूटराइन साउंड ना, आपके कॉलेज में यूटराइन साउंड और ब्लैडर साउंड दोनों अवेलेबल होंगे. समटाइम्स यू आर जस्ट बीइंग कंफ्यूज्ड कि यूटराइन साउंड क्या है और ब्लैडर साउंड क्या है. तो मैं इस पार्ट में जो है यूटराइन साउंड डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. यूटराइन साउंड थोड़ा सा कर्व होता है, आगे पे पॉइंटेड नहीं है पर थोड़ा कर्व है और नंबर्स आपके यहाँ ऐसे लिखे हुए हैं. ठीक है, इससे हम बेसिकली मेजर कर पाते हैं यूट्रस की लेंथ को. ओके, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूटराइन साउंड इज़ used to measure the uterocervical length of the cervix at the time of intrauterine devices, and to feel any pathology inside the cavity like fibroids, submucous polyps, congenital anomalies like septa or bicornuate uterus adhesion. Okay, so we can easily identify these pathological conditions also through the uterine sound. And the angle will be there. If you can able to see, there is an angle. How it looks is like, okay, so this is angle, right? That is what they are telling, like angle. So that angle will help to negotiate the curvature of the uterus, because our uterus is in the position of anteflexion. So easily it can negotiate, insert it, and can assist the whole uterus. Okay, and it has a marking on it which I have already told you. For that we are using to assess the length of the cervix and the uterus. Okay, and next is, this is ovum holding forceps or ovum forceps. If you can able to see this, but remember यहाँ पे आपको क्या करना है, doesn't have the grip, is it? यहाँ पे आपके जो grip थे वो यहाँ पे नहीं है. So remember that it doesn't have a grip. पहचान क्या है इसकी? पहचान सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसमें जो आपको मिलता है वो है एक कर्व शेप. हैव यू एबल टू सी दिस? एक कर्व शेप है. ओके, सो दिस विल हेल्प यू लाइक कि एक ओवम की शेप का या एग की शेप का है. सो दिस इज ओवम होल्डिंग forceps. ओके, ovum holding forceps, and here you can see the front part of it, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. Here you can see this, that is having a spoon like shape which looks like a egg, और egg जो है यहाँ पे हम easily grasp कर सकते हैं. So this is called ovum holding forceps. And yes, you can see like
The instrument is rounded cup like to avoid the perforation and hold the large tissue also. अच्छा, यहाँ पे जो है, जो नीचे ग्रास्पिंग नहीं दी हुई थी, जो मैंने कहा था आपको यहाँ पे ग्रास्पिंग होता है, ग्रास्प कर सकते हैं, यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एबॉर्शन के टाइम पे या फिर कंसेप्टिव प्रोडक्ट जब हम लोग एबॉर्शन के टाइम पे निकालते हैं तो it should not injure any part or any tissue of the women. ओके, जब भी हम इंटरनली इसको प्लेस करेंगे तो उस टाइम पे कोई भी पार्ट या कोई भी टिश्यू इसकी वजह से रप्चर या फिर डैमेज नहीं हो, इसलिए. So the tip of this instrument is rounded cup-like to avoid the perforation and to hold the large tissue. And this instrument is used for removing the product of conception in inevitable incomplete abortion and in MTP, medical termination of pregnancy abortion. Okay, so I hope कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा और आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे at the time of your practical examination. Okay, सो नेक्स्ट वन इज़ दी यूटेराइन क्यूरेटेज. क्यूरेटेज का एक तरीके से हम मतलब समझें तो खरोचना जो खरोच करते हैं ना, हम खरोच करके यूट्रस को क्लीन करते हैं ना, तो क्यूरेटेज वही काम करता है हमारे बॉडी में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूटेराइन क्यूरेटेज, जो कि आपको शार्प एंड ब्लंट एजेस आपको मिल जाएंगे. वैसे तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा आपको क्यूरेटेज देखने को मिलता है जिसमें एक तरफ ब्लंट होता है, एक तरफ बहुत शार्प होता है एजेस. ठीक है, तो दोनों का ही यूज़ होता है जब भी DNC डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज किया जाता है. आपको कभी कभी वन साइडेड क्यूरेटेज भी, वन ब्लेड क्यूरेटेज भी देखने को मिलता है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस along with the shape or sharpness and bluntness. Okay, so sharp curettage is used in gynecology and blunt in pregnancy to check the curettage and to do or perform the curettage. The tip comes in two-bladed sometime, and the sharp and blunt tip. The tip is angled by about 15 degree for easy scraping. Okay, खरोच करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कर्व रहता है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कर्व दिया हुआ है, राइट. ओके, and it is used for scraping the endometrial cavity because after conception, अभी abortion होने के बाद क्या है, हमें यूट्रस को, मेम्ब्रेन को, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को क्लीन करना है. सो एट द टाइम ऑफ दैट वी आर गोइंग फॉर क्यूरेटेज procedure, and this instrument can be used for scraping the endometrial cavity and also to obtain the sample sometimes for assessing the histopathology और कहीं पे fibroid तो नहीं हो रहा है. Okay, so it is having a therapeutic benefit also. Okay, and diagnostic purpose also we can go for it, and it is also has a secondary beneficial advantages of reducing the bleeding in menorrhagia. Sometimes we will just going for the scraping, और जब endometrial lining को हम scrape करके बाहर कर देते हैं तो हम bleeding को control कर सकते हैं. ठीक है, so this is your uterine curettage. कभी कभी हमें ऐसे देखने को मिलेगा शार्प और ब्लंट एजेस के साथ, कभी कभी हमें ऐसे देखने को मिलेगा. ठीक है, यूटेराइन क्यूरेटेज. तो कभी कभी आपको ना बिल्कुल सिमिलर सा ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है जिसमें ये पार्ट जो है वो नहीं होता है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे, वो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे. बस यही है कि सिमिलैरिटी देखने में है पर थोड़ी बहुत चीज़ों में डिफरेंसेस हैं. ठीक है, और आपको यहाँ पे भी ब्लंट नहीं मिलेगा. आपको जो है उसके शेप में जब भी आप देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा थिक पार्ट देखने को मिलेगा. ओके, तो उसको कहते हैं वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, एंड दिस इज़ यूटेराइन क्यूरेटेज. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हेगर डायलेटर. We can call it as Das dilator. Okay, Das dilator और Hager's dilator. आपने ये बहुत ज़्यादा देखा होगा अपने कॉलेज में. देवर लाइक एक बैग में बहुत सारे डायलेटर्स रखे होते हैं विद डिफरेंट साइजेस, और these dilators are known as Hager and Das dilators. इनके डिफरेंट जो है
shapes होते हैं. This will be helpful for dilating the cervix at the time of DNC or any other procedure. For that हमें अगर चाहिए कि हम यूट्रस को विजुअलाइज करना चाहते हैं, इंटरनल यूट्राइन को विजुअलाइज करना चाहते हैं और सर्विक्स को ओपन करना चाहते हैं, एट द टाइम ऑफ दैट वी आर यूजिंग दीज डायलेटर्स विद यहाँ पे कर्व्ड आपको जो है शेप कर्व्ड पॉइंट मिलेंगे, ना कि ब्लंटेड मिलेंगे, ताकि यहाँ पे कोई भी तरीके की इंजरीज यूट्रस को या सर्विक्स को ना हो. ठीक है. विद डिफरेंट जो है साइज़ेस के अवेलेबल होते हैं और ये साइज़ेस आपको ईज़िली देखने को मिल जाते हैं आपके जो है डायलेटर के ऊपर. और अकॉर्डिंग टू दी लाइक कितना डायलेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायलेटर्स यूज़ करते हैं. ओके. एंड एल्स दिस इज़ नोन एज हॉकिंग एम्बुलर डायलेटर. इसमें क्या चेंजमेंट मिलेगा, इसमें आपको लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा सिक्के जैसा गोल गोल देखने को मिलेगा एंड बाकी सारा डायलेटर जैसा होगा, पर ये थोड़ा सा थिन होगा. ठीक है. ज़्यादा थिन नहीं, पर हाँ थिन होता है. ठीक. और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है लास्ट में एक कॉइन जैसा राउंडेड देखने को मिलता है. इसको हम कहते हैं हॉकिंग एम्बुलर डायलेटर. नाम याद रखिएगा, हॉकिंग एम्बुलर डायलेटर. ओके. सो इट्स अ रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट विद जेंटल कर्व एंड टेपरिंग एंड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स प्रोसीजर लाइक DNC, dilatation and curettage, dilatation and evacuation for the grill operation, hysteroscopy, cervical stenosis, प्राइमरी डिस्मेनोरिया. इन सब के लिए हम हीगर्स डायलेटर और दास डायलेटर और हॉकिंग एम्बुलर डायलेटर यूज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट दिस इज़ ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप. ग्रीन आर्मिटेज याद कर लीजिए, जो ग्रीन आर्मिटेज है उसके आगे आपको बिल्कुल सा चौड़ा सा टिप देखने को मिलता है, एकदम फ्लैटन और चौड़ा टिप देखने को मिलता है. ओके. इफ़ यू कैन एबल टू सी हियर, यू कैन सी दिस, दे हैव शोन लाइक. ओके. सो ये जो चौड़ा सा टिप आपको देखने को मिल रहा है, दिस यू विल फाइंड इन ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप. ओके. ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप. ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप में आपको फ्लैटन serrated tips देखने को मिलेंगे. ओके. एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ गुड grip which will help in like capturing or grasping some particular tissues, okay, or retracting some particular tissues, and which is basically used in LSCS. So flattened serrated tips that serve as a holding and hemostatic forceps. The common indication for LSCS are fetal distress में हम यूज़ करेंगे, chronic pelvic disease, abnormal presentation like transverse lie, ब्रो ब्रीच इन प्राइमी. हम तरीके से हम कह सकते हैं हीमोस्टैटिक फोर्सेप है. जब भी हम LSCS कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में जब हम कर रहे होते हैं, उस समय अपर एज और लोअर एज पे ये अप्लाई करके हम किसी भी जगह पे हाँ एक तरीके से ब्लीडिंग को रोक सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप. ओके. सो नेक्स्ट इज़ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप और स्पंज फोर्सेप. अच्छा, हम ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बेसिकली देखते हैं हॉस्पिटल में भी, और जो है किसी भी जगह पे, किसी भी हॉस्पिटल क्लिनिकल एरिया में हम सबसे ज़्यादा फोर्सेप देखते हैं वो है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप. ओके. फॉर ग्रास्पिंग द गॉस पीसेज एंड ऑल, फॉर वाइल डूइंग द ड्रेसिंग, ओके, वाइल एंटीसेप्टिक पेंटिंग ओवर द ड्रेसिंग ना, वी आर यूजिंग दिस sponge forceps, right? So how we can use in obstetric and gynecology? Basically at the time of cesarean section or at the time of painting over the cervix area, we are using this sponge holding forceps. We are holding the sponge here also. हम यहाँ पे gauze piece उसमें hold करके फिर हम clean करते हैं lip of the cervix को. Okay. और cesarean section में हम bleeding को भी जो है absorb as a absorbent करने के लिए ये instrument को use करते हैं, right?
So this instrument is used for holding the sponge or a gauze piece for painting the area before the operation. And in exploring the cervix after the forceps delivery, 3 sponge holding forceps were used at the time. Okay. Since second trimester of medical termination of pregnancy to hold the cervix before the insertion of the Foley's catheter, and this can also be used for grasping the cervix in OS tightening operation. Like at the time of several procedure, we are using this sponge holding forceps. So our next instrument we are going to discuss is intrauterine devices removal hook. So here you can see, students, this is a hook which is used to remove the intrauterine devices. As you know, it looks like hook only है ना, ये hook जैसा ही दिख रहा है upper tip पे भी और lower tip पे भी, and this one is used in case it is just been asked by the examiner at the practical time. You can easily identify that it is having a hook. Okay, so it is being a intrauterine device removal hook. Okay, so intrauterine removal hook with a simple hook is designed to assist the surgeon in a removal of an intrauterine devices from the uterus, and a large simple hook which is shown here is simply used to remove the intrauterine devices. Okay, so next is, this one is artery forceps. This one is curved artery forceps, and this one is a straight artery forceps which is having a locking ratchet. Here you can see this is the locking ratchet, right? तो यहाँ पे जो है ना, ये लॉक कर देते हैं और इजीली किसी भी आर्टरी को क्लैम्प करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलरली हमें हीमोस्टैटिक करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, किसी टिश्यू को ग्रैस्प करने के लिए वी कैन यूज़ इट बिकॉज इट इज़ हैविंग दिस लॉकिंग सिस्टम ऑन इट्स ring, nearby ring. So this is used, basically you all have seen this in your OT complexes, right? आपने हर जगह OT में तो स्पेशली देखा ही है, बहुत कॉमन फोर्सेप है ये. और ये हम लोग, ये कर्व्ड है जिसमें आप ग्रूव्स देख रहे हैं, इसमें ग्रूव्स है ना, ग्रूव्स आप समझते हैं, दिस इज़ ग्रूव्स. ये जो ग्रूव्स आपको दिख रहा है, राइट? आई होप आपने देख लिया होगा. ये जो ग्रूव है यहाँ पे ये होते हैं, और थोड़ा सा ये कर्व है और स्ट्रेट आर्टरी. ये डिफरेंट साइजेस और मतलब शेप तो दो ही हैं, पर डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़ और अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड सर्जन नीड. यहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं. एंड if examiner is going to ask you what were the uses of straight or curved artery forceps, so मैं पहले भी बता चुकी, it will be used as a hemostat, clamping the artery or to reduce the bleeding, to reduce the hemorrhage, and we can also use for the grasping the tissue at the time of operation. Any operation we are using the artery forceps, right? And to hold the suture also we are using this artery forceps, है ना. जब हमें सूचर्स को कट करने होते हैं तो हम सूचर्स को पहले ग्रास्प करते हैं, देन वी आर यूजिंग दी सिजर टू कट दी सूचर्स. ओके, सो और बहुत सारे यूजेस हैं इन आर्टरी फोर्सेप के, बट कॉमनली यूजेस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. ओके, सो अगर हम पार्ट की बात करते हैं आर्टरी फोर्सेप के, this is also known as hemostat, and if you are asking for the parts of this artery forceps, you can see here they were having a long beak which will be straight or sometimes curved. Okay, they were having a grooves also, मैंने grooves बता दिया है, locking ratchet also, finger ring where you can place, where you can insert your fingers, and it will be available in a straight or curved pattern. Okay, so next is the scissor, which easily you can identify this was the curved and a straight scissor we are using to cut or dissect the tissue at the time of
like operation, at the time of laparotomy, at the time of cleaning of the wounds, है ना. तो बहुत जगह पे हम लोग ये scissors यूज़ करते हैं. This is curved and straight myo scissor, not only a scissor, it's a myo scissor. Okay, curved and straight myo scissor. This is also available in different sizes based on the requirement or based on the need. So straight scissors are usually used for performing the dissection at the surface of the wound, ligature, tendon, ligament or fascia. We are using this to dissect, we are using it to cut the particular टेंडन और लिगामेंट और फेशिया. एंड द कर्व्ड जो सीजर्स होते हैं वो हम लोग परफेक्टली किसी टिश्यू को कट करना चाहते हैं ताकि अदर एडजेसेंट ऑर्गन्स को हम हार्म होने से बचा पाए. हम लोग कर्व्ड मायो सीजर यूज़ करते हैं. ओके, सो दैट इज़ हाउ इट लुक लाइक. आई होप यू हैव seen this in your colleges, but at the time of your practical examination you will be like shocked कि अभी इससे पहले दिखाया नहीं गया है. इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत सारे आप लोग के पास क्वेश्चंस रहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाया गया और प्रैक्टिकल आ गया है हमारे, और इंस्ट्रूमेंट एग्जामिनर जनरली दे आर आस्किंग. ओके, सो नेक्स्ट वन, दिस इज कोचर फोर्सेप. This is कोचर फोर्सेप. Okay, here you can see that is also having a locking ratchet, finger rings, locking area and then the beak. Okay, but यहाँ के beak पे अगर हम देखेंगे, beak के tip पे देखेंगे, so we will get some pointed teeth, snake teeth की तरह जैसा दिख रहा है ना. तो pointed teeth हमें देखने को मिलता है. ऐसा जब भी आपको फोर्सेप देखने को मिले, आप बिल्कुल बिना सोचे फोर्सेप जिसमें लॉक भी है और उसमें ग्रूव्स भी हैं और उसमें टूथ भी है, सिंगल टूथ है. ठीक है, सिंगल टूथ आपस में आगे एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं. दैट वाज दी कोचर फोर्सेप. ओके, कोचर फोर्सेप कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए ऐसा कुछ रहता है. स्ट्रेट एंड कर्व्ड अवेलेबल है, डिफरेंट साइजेस में है. एंड दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ रैचेट, लॉकिंग रैचेट, जो अच्छे से लॉक कर सकता है तो कोई भी चीज़ स्लिप होने से प्रिवेंट हो सकती है. कोई भी ऑर्गन को अगर हम ग्रैस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो स्लिप नहीं होगी. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ दिस इज़ कोचर फोर्सेप. एंड हियर वी आर गोइंग टू रीड द यूजेस ऑफ कोचर फोर्सेप. तो कोचर फोर्सेप जो होते हैं ना, दैट इज़ अभी पिन पॉइंट देख करके समझ में आ जाना चाहिए, कुछ होल्ड करने के लिए है, होल्ड करने के लिए. ठीक है, दैट होल्डिंग कैन बी डन ऑफ फेलोपियन ट्यूब. हिस्टेरेक्टमी में भी हम यूज़ कर सकते हैं होल्ड करने के लिए. बेसिकली कोचर फोर्सेप वी ऑल हैव रेड ड्यूरिंग द एम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्पिंग. एम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं कोचर फोर्सेप को. सो आपने सबसे ज़्यादा वहीं पे ये चीज़ सुनी है. ठीक है, तो यूज़ फॉर होल्डिंग द फेलोपियन ट्यूब इन हिस्टेरेक्टमी टू क्लैम्प द फेलोपियन ट्यूब विच आर देन ट्रांसफिक्स्ड एंड द टिप्स ऑफ द ब्लेड हैव टीथ. एज यू कैन सी कि यहाँ पे टीथ है, टीथ अवेलेबल है ना, टीथ है ना, यहाँ पे टीथ है. ठीक है, सो इट इज़ हैविंग द टीथ विच विल हेल्प the tissue to be grasped on the particular procedure. Okay, it will not allow to slip. So the tissue does not slip and the blade can be either the straight or curved, you have seen already. And then used for the self-injectomy in ectopic or oophorectomy in ovarian mass that we are grasping. And this can also be used for clamping the umbilical cord, which we have already read at the time of delivery. And also in artificial low rupture of membrane we are using, because आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में हम मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं आर्टिफिशियली. अगर वो बहुत डिले हो रहा होता है, द टाइम वी आर यूजिंग दिस कोचर फोर्सेप, इसका टीथ यूज़ करके हम मेम्ब्रेन को हम रप्चर कर देते हैं. तो ये एक तरीके से लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके, सो आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में भी हम लोग कोचर फोर्सेप को यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द कोचर फोर्सेप. आप अभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज़ एम्बिलिकल सिजर. बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है और क्यूट भी है ना. While seeing this instrument only you can identify that this is umbilical scissor because it is having a curved shape, okay, and with the sharp tapering edges
Okay, at the time you are just placing it over the umbilical, it will help it to cut and grasp also. Okay, the umbilical scissor are non ratched because it cannot be fixed. यहाँ पे लॉकिंग रैचेस नहीं अवेलेबल है ना, जैसे लॉकिंग रैचेस कैसे होते हैं, ये है ना, तो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन रैच्ड एक तरीके से सिजर है, जहाँ पे हम लोग एम्बिलिकल कॉर्ड में फिक्स करके उसको कट करते हैं ना। दी सीजर फीचर्स हैव वाइड फ्लैट कर्व्ड ब्लेड, दे आर टिपिकली यूज विदाउट क्लैम्पिंग द एम्बिलिकल कॉर्ड बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द ब्लेड्स होल्ड्स द कॉर्ड इन प्लेस। ओके, सो एम्बिलिकल सीजर जैसे ही हम देखेंगे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे दिस इज एम्बिलिकल सीजर। ओके, सो नेक्स्ट इज द गेल्पी पेरिनियल रिट्रैक्टर। बहुत लोगों ने देखा है और इवन हमने भी देखा था, हमारे फर्स्ट ईयर में हम देखे थे, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ये हमें कैसे यूज़ करना है, इसका नाम क्या है। नो वन हैज़ टोल्ड दैट, किसी ने भी नहीं बताया इसका नाम क्या है। दिस इज़ गेल्पी पेरिनियल रिट्रैक्टर। ओके, गेल्पी पेरिनियल रिट्रैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे आपको पॉइंटेड एरिया जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको जाते हुए मिलेंगे, ऊपर से यहाँ पे आपको लॉक मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे लॉक होता है। तो जब भी आप इस पार्ट को जो है ऊपर नीचे करते हैं ना, उस अकॉर्डिंग ये ब्रॉड होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको नीचे करेंगे, ठीक है, ये छोटा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर करेंगे, इस साइड आएंगे, ये और ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक, और ब्रॉड होता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज गेल्पी रिट्रैक्टर विद स्पीड लॉक, दिस इज स्पीड लॉक। ओके, तो इसका क्या यूज़ है, उसका नाम से ही पता चल रहा है, पेरिनियल रिट्रैक्टर है, रिट्रैक्ट कर रहा है पेरिनियल को। तो गेल्पी रिट्रैक्टर विद स्पीड लॉक इज यूज टू होल्ड बैक ऑर्गन्स टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी। वी आर जस्ट यूजिंग दिस टू होल्ड द पर्टिकुलर ऑर्गन while doing the adjacent surgery of that particular organ, specifically perineal area में। तो वहाँ पे हम लोग ये होल्ड प्लेस करके होल्ड करते हैं, और उसके बाद हम इजीली किसी भी जगह पे ऑपरेट कर सकते हैं, बेसिकली पेरिनियल एरिया। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वन इज ब्रॉन स्ट्रैंडलर एपिसियोटमी सीजर, जो कि सबने देखा है, ये एपिसियोटमी सीजर है, ब्रॉन्ड स्टैंडलर एपिसियोटमी सीजर। अच्छा, ये जो है आपको ये थोड़ा कर्व मिल रहा है, इससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आपको किस में मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें कि आपको ब्रॉन स्टैंडलर एपिसियोटमी, हाँ सिंपली हम लोग एपिसियोटमी सीजर भी बोल सकते हैं, बट इफ दे आर आस्किंग द फुल नेम ऑफ एपिसियोटमी सीजर देन यू कैन easily identify this one and tell like it's a Braun Stadler episiotomy scissor. Okay, Braun Stadler episiotomy scissor. So नाम से ही पता चल रहा है, scissor is used for cutting the perineum at the time of second stage of labor, basically at the time of crowning. We are inserting two finger and then we are planned cut we are doing with the help of this episiotomy scissor, okay, to widen the vaginal canal. Okay, so episiotomy scissor are angled scissor, क्योंकि यहाँ पे एंगल है ना, एक एंगल है, देखिए एंगल है, ठीक है, तो ये angled scissor है, an incision is made using episiotomy scissor to the perineum, the muscles between the vagina and the rectum to widen the vaginal canal. Okay, so this is Braun Stadler episiotomy scissor. Okay, अभी ये सब कह देंगे मैम फिर से रिपीट हो गया, दिस इज़ फीटोस्कोप है ना, फीटोस्कोप है, नो दिस इज़ नॉट फीटोस्कोप, दिस इज़ फर्ग्यूसन्स ट्यूबुलर विजिनल स्पेक्युलम। स्पेक्युलम का मतलब ही होता है देखना, स्पेक्ट करना, आप देखेंगे, चाहे वो डबल ब्लेडेड हो या कस्को हो, ठीक है, आप विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर वेजाइनल स्पेक्युलम की बात होती है तो वेजाइना को विजुअलाइज करना या सर्विक्स को विजुअलाइज करना, उसको इंसर्ट करके। ओके, तो यहाँ पे भी सेम इसका भी यही काम है, इसका नाम है फर्ग्यूसन्स
ट्यूबुलर वेजिनल स्पेक्यूलम, जो कि दोनों साइड से ओपन होगा। आप देख पा रहे होंगे कि कैसा ये दिख रहा है। इस पार्ट को भी देखिए और इस पार्ट को भी देखिए। ये पार्ट सिमिलर है। ओके, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज सिमिलर। ओके, सेम ही है, मतलब सेम ही है। ठीक, ये पार्ट सिमिलर है और ये पार्ट सिमिलर है। ओके, तो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पाएंगे, आर पार देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो ये साइड होता है इसके थ्रू हम इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, एंड देन via this part we are visualizing it inside the vaginal area. Okay, the vaginal speculum help to diagnose and treat vaginal and uterine disorders. This type of vaginal speculum was devised by surgeon Sir William Ferguson. तो इनके नाम से ही ये tubular vaginal speculum का नाम पड़ा है। ठीक है, okay, so next one is यूटेराइन वर्सिलम। यूटेराइन वर्सिलम ये क्या है? यूटेराइन वर्सिलम है। इसमें भी अगर आप पॉइंटेड बीक एरिया पे देखेंगे तो आपको मिलेगा टिप। देखिए टिप पे क्या मिलेगा आपको? जिगजैग टूथ मिलेंगे। ठीक, लॉकिंग रैचेट मिल जाता है आपको। अगर हम लॉक करते हैं तो हम सर्विक्स यूट्रस को जो है अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। यूटेराइन वर्सुलम है ना, तो यूट्रस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रोसीजर में ही हम यूज़ कर रहे हैं इसको। तो यूटेराइन वर्सुलम जो होता है ये टिले है, TEALE, टिले uterine वर्सुलम, and which is used for gripping the cervix or uterus during procedures such as episiotomy, hysterectomy and dilatation and curettage. For holding such organs we are using this uterine वर्सुलम। वर्सुलम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके कॉलेज में, और ज़्यादातर वर्सुलम पूछते भी हैं। ठीक है, so some of the student can ask me like, ma'am, what is the difference between the versulum and the Ellis forceps? So there is a slight difference. What you have to keep in your mind is this area and this curve. Okay, that Ellis forceps you will see in a straight pattern. Okay, but this versulum you will see slightly curved. Okay, slightly curved, arrange with this pattern. Okay, this you will see in Ellis forceps also, but that Ellis forceps will be straight and then they are forming this, but the versulum will be like this and then they are forming this. Okay, so that you have to keep in your mind that versulum ऐसा दिखेगा और उसका जॉइंट भी थोड़ा सा चेंज होगा, और जो हमारा एलिस फोर्सेप होता है वो आपको ये दिखेगा विद जिगजैग पैटर्न। ओके, टूथ, मल्टीपल टूथ यू विल सी। तो वर्सुलम में भी मल्टीपल टूथ होते हैं, कभी कभी सिंगल टूथ भी वर्सुलम होता है। तो ये भी हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रिपिंग द यूट्रस एंड वाइल डूइंग एनी प्रोसीजर ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, ओके, while doing hysterectomy, dilatation and curettage to hold that particular tissue. Right? Okay. So next is the Sims double-bladed posterior vaginal speculum. बहुत आप लोगों ने देखा है ना, अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा देखा होगा। This is Sims double-bladed. Double-bladed कैसे? This is having two blade, है ना, two blades. So Sims double-bladed posterior vaginal speculum, this is also being used in dilatation and curettage, dilatation and evacuation. अच्छा, ये जो ब्लेड्स होती हैं ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट साइज़ की है, ये डिफरेंट साइज़ की है, कर्व्ड है ताकि किसी भी तरीके से इंजरीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। To inspect the cervix and vagina and detect any injury following the delivery. For that we are using to clean the vagina following delivery, to inspect the cervix and vagina to exclude any local cause for bleeding in antepartum hemorrhage, to inspect the cervix and vagina to exclude any local cause of bleeding in APH, antepartum hemorrhage. Cusco speculum
ही प्रेफर किया जाता है, अलॉन्ग विद दैट हम ये भी प्रेफर कर सकते हैं। सो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन में हम लोग सिम्स डबल बेडेड पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, so this was the last instrument we are dealing with. This is the simple towel clip. Towel clip क्या है? It's a clip, okay, used for like fixing the skin. हम स्किन को एक के साथ एक फिक्स कर रहे हैं तो, ठीक है। बेडशीट है, टावल है, ड्रेप है, दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक ऊपर है आपको देखने को मिल रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्रॉस एक्शन में है, ये क्रॉस एक्शन में है। जब हम इसको प्रेस करेंगे इस एरिया को तो इसका एक्शन होगा यहाँ पे, और इसके पास लॉकिंग रैचेट है। एक तरीके से इसको स्किन को हम लोग जो है यहाँ पर क्लिप कर सकते हैं। सो द टॉवल और अ शीट आर फिक्स्ड टू द स्किन एंड ईच अदर विद दीज क्लिप्स. It is used in draping the operative area, abdominal or vagina. Okay. So these were some of the obstetric and gynecological instrument we have discussed, and basically they are asking during your practical examination, and also at the time you are going for your practical session. While posting, while doing clinical practices, you will be very much familiar to these instruments. Sometimes if the examiner are asking you, they are keeping these instruments in front of you. Don't learn these instruments in a simple way. हाँ, उनके नाम याद रखिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स को देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए। अभी आप बेसिक पे हैं, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिक. सेकंड I'll upload soon. I hope you have understood the content. If you have any suggestion, doubt, or any topic if you want me to take, you can mail me at the given mail ID in the description box. Meet you soon. God bless you.